بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه. صدر مجلس، دیگر علماء کرام، سامعین اعظام، حفظ مکمل کرنے والے عزیز بچوں اور گارجینز حضرات، قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ابھی آپ لوگوں کے سامنے اخلاص کے متعلق باتیں رکھی گئی. سب سے پہلے میں یہ 15 بچے جن لوگوں نے حفظ مکمل کیا اللہ رب العالمین کی توفیق سے، ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان کے گارجین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ادارے کا انتخاب کیا اور اپنے بچوں کے لیے حفظ جیسا کورس متعین کہ اللہ رب العالمین ان کے اس خلوص کو قبول فرمائے. یہ وہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کی تاریخ 1.25 سال پرانی ہے. یہاں آنے کے بعد ابھی مشکل سے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا. پروگرام کے 15 منٹ پہلے یہاں کے بارے میں پتہ کیا، ہم نے معلوم کیا اس دیوریا ضلع کے 31 لاکھ آبادی میں یہ ایک ادارہ ہے الحمدللہ جس کی اپنی ایک تاریخ ہے 125 اس مسجد کے قیام میں محمد انصاری صاحب المعروف بے حکیم انصاری صاحب، یہ اس وقت کا زمانہ ہے 1870. وہ جون پور سے ایک سرکاری ٹیچر کی حیثیت سے یہاں دیوریا میں تشریف لاتے ہیں. وہ اس قدر غیور ہوتے ہیں اسلام کے متعلق، اسلامی شعائر کو لے کر، کہ سرکاری ٹیچر ہوتے ہوئے پرنسپل سے جھگڑا ہو جاتا تھا. ایک پنڈت جی تھے، جمعہ کے لیے چھٹی مانگتے تھے، وہ نہیں دیتے تھے چھٹی. ایک بار تو میں ہو گئی اور احمد انصاری صاحب، حکیم انصاری صاحب نے کہا آج میں استعفیٰ دے رہا ہوں، آج کے بعد سے میں اسکول نہیں آؤں گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اسی ایریا میں آئے اور آنے کے بعد یہاں کی جامع مسجد میں جو دوسرے مسالک کی مساجد ہیں نماز پڑھنا شروع کیا. جمعہ کے لیے بھی جاتے، وہاں پہ بھی تکچک ہوتی، نوک جھوک ہوتا، رفع یدین کو لے کر، آمین بالجہر کو لے کر، کئی چیزوں کو لے کر ان سے بحث و مباحثہ ہوتا. وہاں سے بھی عاجز آئے اور عاجز آنے کے بعد 1898 میں آپ نے، حکیم انصاری صاحب نے اس مسجد کا قیام کیا. اس مسجد کا قیام کیا اور اسی سے متصل ایک مدرسے کا قیام کیا. اور اللہ کا شکر ہے تب سے لے کر اب تک بڑی شان کے ساتھ یہ ادارہ اور یہ مسجد الحمدللہ آباد ہے. یہی وہ مسجد ہے اور یہی وہ مدرسہ جہاں آریہ سماج کے لوگوں کا اٹیک ہوتا رہتا تھا. یہ بخوبی یہاں کے مقامی لوگ جانتے ہوں گے. اگر میں غلط کچھ کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجیے. لیکن یہ جو تاریخ ہم نے جانی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، ان کے ہاں نمود تشہیر رہی تھی. اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا کہ ہم مسجد بنوا رہے ہیں، مسجد کا ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، فوٹو کھینچو، وہ نہیں تھا. آج کے دور میں ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، جب تک فوٹو نہیں کھینچا جاتا ہے تب تک پیٹ نہیں بھرتا. جیسا کہ شیخ محترم نے کہا کہ اخلاص، ان کی اخلاص کی برکت ہے کہ آج اس مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. آریہ سماج کے لوگوں سے جدال کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، اور مباحثہ اس قدر بڑھا کہ مناظرے کی شکل اختیار کر لیا. پھر اس زمانے میں 1903 16 اگست 1903 میں
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया और 7 दिन तक किसी मकाम पर इन लोगों से मुनाजरा चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से मुनाजरा जीत गए लोग। ये किताब में मदव्वत है सारी चीजें। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पे आए, तशरीफ लाए। अल्लामा अमृतसरी रहमतुल्लाह सनाउल्लाह साहब, उनके साथ हमारे जमात के उलमाए किराम ने मुनाजरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह जीते। उसके बाद इस मस्जिद की तामीर नौ कब हुई? 1936 के अंदर, खपड़ेल के मकान में। उसके बाद मेरे ख्याल से 2009 में इस मस्जिद की तामीर नौ हुई। 3 मंजिले की अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खड़ी। बड़ी खुशी की बात है, उस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद के क़याम में हमारे असलाफ ने, हमारे पूर्वजों ने खूने जिगर दे के सींचा था, अपनी मेहनत से इसको आबाद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका समरा दिख रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, आज आपने कुरान याद किया है, अभी सिर्फ कुरान याद किया है, कुरान के अल्फाज आपने याद किया है, कुरान के मानी बाकी हैं। क्या आप अज़्म करते हैं? क्या आपका इरादा है कि इंशाअल्लाह जिस तरह आपने कुरान के अल्फाज को याद कर लिया, क्या आपका इरादा है कि इंशाअल्लाह कुरान के मानी को भी हम समझेंगे? क्या आप अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम कुरान के मानी को सलफ़े सालिहीन, सहाबे किराम के मनहज, सलफ़े सालिहीन के मनहज के मुताबिक कुरान को समझने की कोशिश करेंगे? वही अल्लाह जिसने इस मस्जिद और इस मदरसे की हिफाजत की, उसी ने जिम्मेदारी ली है। किस चीज की जिम्मेदारी ली है? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, कुरान को हमने नाजिल किया है और हमारी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना। अजीजाने गिरामी, आज देखिए ये बच्चों के हाथ में जो कुरान है, ये कुरान का एक एक हर्फ, इसकी एक एक हरकत, चाहे साकिन हो, चाहे मबनी हो, चाहे मोरब हो, उलमाए किराम जानते हैं अरबी जबान के जितने भी अल्फाज हैं 2 हिस्सों में मुनक़सिम हैं, एक मोरब में, एक मबनी में। एक जिस पे हरकत मुतय्यन है और एक पे हरकत बदलती रहती है। एराब के एतबार से, आमिल के एतबार से उलमाए किराम बखूबी वाकिफ है। चूंकि इस प्रोग्राम में अवाम का तबका भी मौजूद है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि इस कुरान के अंदर जितने भी हुरूफ है, किसी भी टाइप को, किसी भी किस्म का लफ्ज हो, चाहे मोरब हो, चाहे मबनी हो, अल्लाह का शुक्र है आज 1430 साल हो चुके हैं, तब से लेकर आज तक एक हरकत भी अब तक जाय नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, महफूज है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के एक एक हुरूफ को महफूज रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के मानी को भी महफूज रखा है। इस कुरान के मानी को महफूज रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि जिम्मेदारी ली है, गारंटी ली है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्फाज की हिफाजत की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मानी की भी हिफाजत की। मानी की हिफाजत कैसे? आप कुरान को उन्हीं लोगों के मुताबिक आपको समझना होगा जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अव्वलीन मुखातब थे। उसी के मुताबिक हमें कुरान को समझना होगा कि जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें महफूज हैं। सुन्नतें महफूज हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, नसई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, जितने भी उलमाए किराम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से इन लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके उस नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को महफूज किया। जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, कुरान की आयत को समझा, कुरान के मानी को सहाबे किराम को बताया। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान के अल्फाज को महफूज करने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मानी को भी महफूज किया। मानी को महफूज करने के साथ साथ इसके रस्मुल खत को भी महफूज किया। जिस रस्मुल खत में आज ये कुरान महफूज है, आज से 1400 साल पहले भी यही महफूज था। अल्लाह ने अल्फाज को महफूज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके मानी को महफूज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके रस्मुल खत को महफूज किया। चौथी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन सी आयत किस सियाको सबाक में नाजिल हुई उसको भी महफूज किया, जिसको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। किस कंटेक्स्ट में आयतें नाजिल हुई, क्या पस मंजर था, क्या पेशे मंजर था, सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज किया। यही वजह है कि जो लोग पस मंजर आयात, पुरानी आयात के पस मंजर को नहीं समझते, आज गुमराह हो जाते हैं।
आज जब एक मुशरिक, एक काफिर इंसान जब इस कुरान को पढ़ता है नॉर्मल टेक्स्ट, तो पढ़ने के बाद गुमराह हो जाता है। जब उस आयत पे पहुंचता है, किस आयत पे कि मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो, इस कुरान के अंदर मौजूद है, लेकिन जब वो सियाक़ो सबाक़ को नहीं समझता, नहीं पढ़ता, वहीं से गुमराह हो जाता है, वहीं से गुमराह हो जाता है। हर इंसान हमारे और आपके बीच में जब भी कोई बात कहता है तो कोई कंटेक्स्ट होता है, कोई सियाक़ो सबाक़ होता है, कोई पस मंजर होता है, कोई पेश मंजर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको भी महफूज किया। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज को महफूज किया? वो सहाबे किराम जो इस कुरान के अव्वलीन मुखातबीन थे, उनकी जिंदगी के बारे में एक एक सहाबी के मुतालिक मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर सबकी सवाने को, सबके तराजिम को महफूज कर रखा है। सहाबे किराम की जिंदगी, ताबईन इज़ाम की जिंदगी, उसके बाद मुहद्दिसीन, सारे लोगों की जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। जिसको उलमाए किराम बैठे हुए यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं इल्मुर रिजाल का फन। इल्मुर रिजाल ये ऐसा फन है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब तक महफूज रखा है। किसी दुनिया के किसी मजहब में ये फन मौजूद ही नहीं है। एक हदीस आप तक कैसे पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर यहां तक एक एक शख्स, एक एक सहाबी, ताबई, रावी, रवायत करने वाला, सब की सवाने मौजूद है। कहां पैदा हुआ, किससे उसकी मुलाकात हुई, कितने बच्चे थे, कितनी बीवियां थी, किस शहर में गया, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। और आखिरी बात, अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान है आपने अपने सीनों में महफूज कर रखा है। ये अल्लाह का बहुत ही कम्पैक्ट पैगाम है, कम्पैक्ट, बहुत ही कम्पैक्ट पैगाम है, हाई लेवल का कंटेक्स्ट है, जिसको समझने के लिए जरूरी है कि हम सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, मुहद्दिसीन की जिंदगियों को पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे। वरना अगर अपने दिमाग से इसके मानी को समझने की अगर कोशिश करेगा कोई, तो यकीनन गुमराह हो जाएगा, यकीनन गुमराह हो जाएगा। और आज ये फितना हमारे बीच में बहुत तेजी के साथ, बिलखुसूस राफिजियों का फितना, तहरीकियों का फितना, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इनकार करते हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हमें समझना होगा, इसको अच्छे से समझना होगा। और आखिरी बात, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, आखिरी बात कह के मैं रुखसत चाहता हूं, क्योंकि शायद मेरा वक्त भी ज्यादा हो गया। हम असलाफ की जिंदगियों को जब पढ़ते हैं तो असलाफ की जिंदगी में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखते हैं, तो उन्होंने 10 साल से पहले कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ते हैं, 10 साल से पहले उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को पढ़ते हैं, 10 साल से पहले उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। बहुत सारे मुहद्दिसीन, उलमाए किराम, फुक़हाए इज़ाम, जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी के शुरुआती उम्र में हिफ्ज़ कर लिया था। हालात ऐसे फिलहाल हैं अज़ीज़ान गिरामी, गार्जियंस बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने के लिए शुरुआती उम्र का इंतखाब कीजिए। हिफ्ज़ करने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, ना हिफ्ज़ करना कोई वाजिबी अमल है। आप उतने ही हिफ्ज़ कर लीजिए जितने आपकी जरूरत है। शरीयत ने जितना वाजिब करा दिया है, नमाज आप पढ़ सकते हो आराम से, ये एक मुस्तहसन अमल है। लेकिन अपने बच्चों के लिए वो उम्र मुतय्यन कीजिए जिस उम्र में उनका कुरान पुख्ता हो जाए। और उसके अलावा चूंकि 15 साल के हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, दूसरे कोर्सेज करने होते हैं, जब उम्र उनकी ज्यादा हो जाती है तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराने के लिए वो शुरुआती उम्र का इंतखाब कीजिए। ये मेरा पैगाम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।